So good morning, dear students. Today we are going to be discuss the numerical based on the formula which we have derived in the last class. The torsion in the shaft. The formula is that is equation is called the equation of torsion. So let's move ahead. So let's see the problem statement. Okay, let's come. So this is the problem, and I will just read out the problem statement. So problem statement here is a composite shaft is made by joining a 800 long solid shaft with 800 long hollow copper shaft. Shown in the figure, you can see in the figure. Okay, the diameter of solid shaft is the diameter of solid shaft is 40 while the external and internal diameter of hollow shaft are 25 and 50 respectively. Determine the maximum shear stress developed in the steel and copper shaft if the torque T applied at the junction. So torque T is applied in the junction in this place where the magnitude of the torque is 4 kilonewton meter. What is the angular twist at the junction? So हमको we have to calculate the maximum shear stress developed in the steel and copper both, as well the angular twist at the junction in these points in junction. हमको यहाँ junction के पास we have to be calculate the angular twist. अगर आप इसको C point कर सकते हो, ये A वाला part कहलाता है. This is a A point, this is a B. So this is the case of, you might be remember, we have discussed in the last case, we have seen a condition if the shaft is fixed at the both end. This is a case of parallelism. So in the case of parallelism, the shaft experiencing the total torque is equal to the sum of their individual torque. Okay, torque means the twisting moment, and the angle of twist which will be equal in the both shaft which are configured as a parallel. So means यहाँ पर जो एंगल ऑफ ट्विस्ट इस एरिया में होगा और इस वाले पार्ट में होगा, मतलब टोटल यहाँ पर अगर C की बात करूँ तो जो QC, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट C with respect to A will be equal to the angle of twist C with respect to B. तो यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा it will be equal. And the total torque, if you are talking about the total torque T which is applied here, total torque T will be torque at this TA, this one which is applied on the solid steel shaft, TA equal to TB. TB is applied at the hollow copper shaft. This is called the TB. So this is about the question. क्वेश्चन में ये है, और इस कॉन्फ़िगरेशन, इस पैरेलल शाफ्ट का यहाँ मीनिंग जो आपको समझ में आ रहा है. सो ये इक्वेशन आपके पास हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड व्हाट द क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम यू. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेट, we are interested to calculate the value of what this shear maximum shear stress. ठीक है, ये हम इसको निकालने वाले हैं. चलिए अपन चलते हैं आगे. और ये माइट बी और अंडरस्टूड कैसे ये हुआ, लास्ट क्लास में अपन ने देखा ही था इसको. सो लेट्स मूव अहेड. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट T is equal to TA plus TB. This is become equation number 1. And the one good thing is that here the length of the individual shaft is equal. तो length of steel shaft, length of copper shaft, जिसको हमने स्टील के लिए A यूज किया है, कॉपर के लिए B सफ्रिक्स यूज किया है. So it's become 800 mm.
So also I explained, dear student, कि the angle of twist at C with respect to A or angle of twist at C with respect to B both will be equal. ये होता है पैरेलल वाले केस में, ठीक है। देन आप क्या करोगे, आप सीधे इसकी थीटा इसकी वैल्यू रख सकते हो जो कि आपको पता है टी एल अपान जी जे, टी एल अपान जी जे, वेयर आप टी एल अपन जी जे ए के लिए ए यूज कर लो, ए पार्ट के लिए सबके सफिक्स में ए इधर बी भी यूज कर लो, ए एल एल दोनों में इक्वल है तो दे विल कैंसिल आउट। सो नाउ this relation become like this, टी ए अपन टी बी जी ए अपन जी बी इक्वल टू जे ए अपन जे बी, ठीक है। अब हम इसमें इनकी वैल्यू रख सकते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है, आप देखो गौर से देखो, ये दिया है जी ऑफ स्टील इक्वल टू जी ऑफ कॉपर का 2 टाइम्स है, कॉपर का 2 टाइम्स है, या आप थोड़ा सा समझने के लिए आप स्टील को हमने ए बोला था तो ए इज इक्वल टू 2ZB, ये ऐसा लिखा हुआ है जहां कॉपर की वैल्यू दी है, कॉपर वाले की वैल्यू दी है और ये रिलेशन गिवन है। अच्छा है, आपको इसको आसानी से डायरेक्ट हम उठा के रख देंगे तो डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो बहुत अच्छा है, इसको वी विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। नेक्स्ट, that is the this relation become this, just put the value of GA upon ZB, ये डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा 2, एंड नाउ द रेशियो ऑफ J अपॉन JB निकालना है, तो ये तो 2 हो गया आपका। अब J अपॉन JB का रिलेशन निकाल लेते हैं। J अपॉन JB तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पाई बाई 32 डी की पावर 4, होलो के लिए क्या होगा पाई/32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, ये आपको पता है। चलिए, द मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट अब हमको निकालना है। सो अब हमको पता है दिस रिलेशन, ये पता है जे अपॉन 32 और 32 इंटू डी की पावर 4, तो यहाँ सॉलिड शाफ्ट जो है उसकी डायमीटर कितना है 40, तो 40 की पावर 4, एंड जे भी मतलब द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉपर पाई/32 इंटू डी आउटर मतलब 50, डी इनर मतलब 25, इनका पावर 4 कर दिया और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, दिस इज बिकम लाइक दिस। और जो इक्वेशन नंबर 2 थी टी ए अपॉन टी बी, ये और पहले से जी ए अपॉन जी बी इक्वल टू 2 था, तो देन यू हैव गॉट अ न्यू एरिवेशन टी ए इक्वल टू टी बी इंटू दिस वैल्यू। देख लो, जैसे आपको यहाँ से मिल गया टी ए इन टर्म ऑफ टी बी, आप यहाँ टी ए की वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट टी बी इक्वल टू 2.135 किलो न्यूटन मीटर एंड टी ए इक्वल टू 1.865 किलो न्यूटन मीटर। सो जो टी ए है पहले से पता आपको स्टील का है, ये वाला कॉपर का है, तो टॉर्क ऑन स्टील एंड टॉर्क ऑन द कॉपर आपने नाउ आपने निकाल लिया इसको। सिंपल सा रिलेशन, वही फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल टी जो आपके पास है टी अपान जे इक्वल टू टाउ अपान आर सी थीटा और जी थीटा बाई एल, उसी का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। बट यू मस्ट बी रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ द twisting moment in case of parallel, in case of series, and what the relation of angle of twist. Angle of twist and torque, those they will play an important role. So now come to the point shear stress। अब निकालते हैं shear stresses। तो shear stress के लिए अपने को जे ए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्टील एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कॉपर दोनों निकालने पड़ेंगे। दोनों हमने निकाला वही फॉर्मूला यूज करके। तो आप ये चीज ना यहाँ भी कर सकते थे, एक ऑप्शन था, आप यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, तो आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वाला भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जे ए इक्वल टू पाई/32 40 की पावर 4 इक्वल टू 25.137 इंटू 10 टू द पावर 4 mm पावर 4, एंड सिमिलरली जे भी आपने कैलकुलेट कर दिया, दैट विल बी 57.527 10 पावर 4 mm की पावर 4 द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सिंपल, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपको पता है टाउ आर इज इक्वल टू
टी नहीं बेटा, ये टाउ है, ये छोड़, ये वाला ऐसा वाला, ठीक है। और ये अपॉन होता है टी जे, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ मास। तो अब जब यहाँ से टाउ चाहिए आपको, आप क्या करोगे, आर को यहाँ भेज दोगे, ये हो गया आपका आर, इसको यहाँ से हटा देंगे, वही किया हुआ। चलो चलो गौर से देखते हैं, ये क्या है, किसमें निकाल रहे हैं, स्टील, स्टील मतलब ए, जिसमें ए सफिक्स होता है, इसलिए टाउ मैक्सिमम एट स्टील, टाउ इज इक्वल टू किसका टॉर्क, जो स्टील में टॉर्क निकल लग रहा है, तो स्टील में टॉर्क कितना लग रहा है 1.865 इंटू 10⁻⁶, एंड ये 40 की, ये क्या है 40 का आधा, ये आर, ये देखो ये आर 40 रेडियस डायमीटर था, उसका आधा 20, देन जे, जे अभी निकाला आपने यहाँ, ये देखो ये वाले टर्म, ये जे आपने निकाला 2513 इंटू 10⁻⁴, इसको सॉल्व किया, इट्स बिकम 148.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में। देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉपर, सेम फॉर्मूला इज देयर, that you use the TB, the torque on is copper, into, why are using the 25, because we are calculating the maximum shear stress, and shear stress is directly proportional to the radius। आप यहाँ से देख सकते हो, तो कहाँ होलो शाफ्ट है तो उसमें दो रेडियस, इनर एंड आउटर, तो ऑब्वियसली आउटर पे ज़्यादा होगी, और हमको निकालना है मैक्सिमम, इसलिए हमने 50 का आधा लिया 25, ठीक है। तो 25 का, ये 50 का आधा है, 50 का आधा 25 लिया, दैट इज बिकॉज, एंड जे भी आप यहाँ निकाल चुके हैं, ये देखो जे भी, ये यहाँ से ये रख लिया, इसको सॉल्व किया, इट्स बिकम 92.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द एंगुलर ट्विस्ट एट द जंक्शन। एडवांटेज ये है कि आप दोनों बराबर ही होगा, तो कोई भी ले लो, चाहे ए वाला ले लो चाहे बी वाला ले लो, तो हमने ए वाला ले लिया। टी ए, एल ए, जी ए, जे ए, सारी वैल्यू आपके पास पता है पहले से, जस्ट रखना है 1.865 इंटू 10⁻⁶, ये कहाँ से आया, ये लेंथ दिया है 800 mm क्वेश्चन में, एंड जी ए मतलब इसका किसका, ये क्वेश्चन में दिया है आपको जी ए इज इक्वल टू 2GB, तो देखो इसलिए यहाँ वो वाला 2 आ गया, और GB की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 82, ये वाला किलो न्यूटन से, तो ये ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। एंड J की वैल्यू ये निकाला तुमने, उसको रख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये रेडियन में आ गया, उसको कन्वर्ट कर दिया, π/32 ये से था, तो ये था रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, कैसे करोगे 180 उल्टा कर देना, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देना, सो यू विल गेट द इन डिग्री। सो ये क्वेश्चन था, ऐसे हमको निकालना था, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल है, आसान है, होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप यू आर एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बहुत आसान है, सबको बन जाएगा। चलिए एक और आसान सा न्यूमेरिकल पर डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन हम कर सकते हैं या कर रहे हैं। सो समझो, पहले तो क्वेश्चन में ध्यान लगाओ, अ सॉलिड शाफ्ट इन अ रोलिंग मिल ट्रांसमिट 20 किलोवाट ऑफ पावर, इतना पावर वो ट्रांसमिट कर रहा है एट 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज का मतलब होता है बेटा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, जिसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन या कोई भी मोशन पर सेकेंड, ऐसे मूव कर रहा है तो भी, लेकिन इन पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट सेफ डायमीटर ऑफ a shaft if the shear stress not to be exceed 40 megapascal and angle of twist is limited to 6 degree in a length of 3 meter, use G is equal to 83 gigapascal। बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया लगभग आपको, बस हमको इसमें से जो चीज़ निकालना है, द शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है। आपके पास टाउ है, डी तो निकालना है, जे के अंदर भी डी होता है, टाउ दे दिया, ठीक है। अब आपको टी भी दिया है इनडायरेक्टली, कहाँ दिया है, टी पावर के अंदर होता है,
क्योंकि क्या होता है पावर का फॉर्मूला 2 पाई NT/60 where n is revolution per minute। आप समझो इस चीज को, रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर है तो उसका डायरेक्टली यू कैन यूज दैट 2 पाई NT/60। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द पावर। ठीक है, ऐसे याद रखो। उसका यूनिट, एक इंडिविजुअल की यूनिट क्या है, तब पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर। आप देख लीजिए, P इज इक्वल टू 20 kilowatt and n is equal to 2 hertz is given। n is what? रिवॉल्यूशन उस कितने मूव कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, उसमें 60 को मल्टीप्लाई कर दो तो इट्स बिकम रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब n हो गया। ठीक है, जो f था पहले फ्रीक्वेंसी, इट्स बिकम n। नाउ द यूज द नोन फार्मूला P इज इक्वल टू 2 पाई NT/60। P क्वेश्चन में दिया है आपको, ये गौर से देख लीजिए। ये देखिए 20 किलोवाट में, तो वाट में कन्वर्ट कर दें तो 10⁻³ इक्वल टू 2 पाई। एंड यहाँ निकाल लिया आपने, यहाँ से 120 इंटू टी निकालना है, 60T यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दैट्स बिकम 1.592 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। लेट्स डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट, हमने कैपिटल डी एस मान ली, जो मन हो वो मान लो, कि माना कि डी इज द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। टी आपको मिल गया, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन में दिया है, अब निकाल लो। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, सब कुछ दे दिया आपको, तो आपके पास दो ऑप्शन है टी निकालने के। एक, चलो आगे डिस्कस करते हैं कैसे। आपके पास ये देखिए फॉर्मूला एक्चुअल क्या है, फॉर्मूला है एक टी जे अपॉन इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाय एल। एक तो ये डी है इसके अंदर, ये देखो गौर से, ये डी इसके अंदर है और एक इसके अंदर भी डी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन बेस्ड ऑन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, इसको लेके निकाल सकते हो ए पार्ट को। ये देखो गौर से, यहाँ से भी आपको डी मिल जाएगा। ये कहलाता है डायमीटर निकालना बेस्ड ऑन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस कहाँ है, ये है, तो मैं इस पार्ट से निकाल सकते हो। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ जी थीटा अपॉन एल और टी अपॉन जे से थ्रू भी निकाल सकते हो, क्योंकि डी तो जे के अंदर है, तो इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ा लेके भी सॉल्व कर सकते हो और इन दोनों का जोड़ा लेके भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। लेकिन जब सब डेटा है तो आप क्या करोगे, दोनों से निकालोगे, जिसमें से डी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सेफ होगा और वही आंसर होगा। ये है क्वेश्चन, आया समझ में। चलिए लेट्स, अब कुछ नहीं है, अब सीधे करना क्या है, कुछ नहीं, जो गिवन डेटा है उसको रखना है। टाउ मैक्स दिया है क्वेश्चन में 40 मेगापास्कल, और ये फार्मूला टी टाउ मैक्स टी जे अपान, ये दोनों लिया, देखो जरा ये वाला पार्ट लिया टी जे अपान जे, जब हमने लिया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सो यहाँ पर टी, ये टी की वैल्यू हमको पहले से भी निकाल ली, आर मतलब d/2, पाई/32 जे है 1/4, और यहाँ से we can able to find out the value of d, that d is the 86 mm, diameter is 86 mm by using this relation। ठीक है, now you just calculate the diameter of maximum angle of twist, diameter based on the maximum angle of twist, मतलब ये वाला पार्ट, ये देखो यहाँ से ये वाला पार्ट यूज कर लिया। सो यहाँ से हमको थीटा पता है, क्वेश्चन में दे दिया, तो उसको थीटा के टर्म में लिख लिया, तो ये हो जाएगा TL अपान जी। सो ये हो गया TL अपान जी। ये था डिग्री में, कन्वर्ट करना है हमको रेडियन में, तो ये इसलिए हमको इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और ये आपको पता है कि कभी भी एंगल डिग्री में किसी से जुड़ता, घटता या भाग या गुणा नहीं होता, उसको वो करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट ही करना पड़ता है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपान 180 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। टी की वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले निकाल ली थी, ये आ गई। लेंथ आपको दिया है कितना, 3 मीटर,
मीटर को mm में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन हो गया। जी जी इज गिवन 83 इंटू 10⁻³ क्यूब गीगा पास्कल में दिया है, तो डायरेक्टली 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको बहुत फ्रॉम पहली क्लास से ही पता है। एंड π/32 d⁴ ये एक फार्मूला होता है। अब इसको आराम से धीरे धीरे देख लेना, ये जो जो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे ये गया, और जो जो जहाँ कट रहे हैं वो कट जाएंगे। देन आप फिर d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो d इज इक्वल टू बिकम 48.64 mm। सो लेट्स सी दोनों में से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली 86 इज बिगेस्ट वन। तो जो ज़्यादा है दोनों में से, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मार्क्स ज़्यादा है, so that will become the answer of the question, because it will be safe and the both condition, if the this much of the angle of twist acting on the shaft or this much of the shear stress acting on the shaft, the shaft will be safe. If we will take this one, so in this case it will be fail if the maximum torque if the maximum shear stress applied 40 newton 40 megapascal, सो वो फेल हो जाएगा। सो वी हैव द, तो हमारे पास ये दो तरीके से निकाल के आप क्या करोगे, जो बड़ा डी आएगा उसको लिखोगे द द द द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ amongst two will be the answer। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी that will be the answer, and because it is satisfy the both cases, both case means case of maximum shear stress and case of maximum angle of twist। so इस तरह से now you are able to solve the problem, simple problems which is based on the equation of torsion। and you might be remember the equation of torsion क्या होती है, वो आपको हो गया, आपको पता है। so you can use these simple formula and you are now able to solve the problem of torsion in the shaft if it is in parallel or in series, both condition you know, you just apply your mind according to the conditions and you just use the formula and you get the value। now the next time we will discuss about if the multiple twisting moment is acting, then what will be happen। so thank you dear student for here, for being here,